ठीक है? This is where we need to start from. So we discussed it a bit in the last class. So what is corporate governance? Corporate governance. Corporate. आपके पास कंपनीज जो हैं तो किस तरह आप हाँ, corporate company होगी और governance, how to govern, उसको आप कैसे चलाएंगे, how would you run it? So it's an effective corporate governance system. We talked about corporate governance yesterday. Okay, so corporate governance is actually the system through which a company is running or being controlled. And then we said, there are three key players. Okay, we have the management. Top management, who's actually running the company, day-to-day operations activities. But they would be working for their own selves, salary. So they are controlled by the board of directors, who would be monitoring them, and in order to make them work, they would be giving them incentives. Whenever they work and they do good, the benefit goes to stockholders, who are the real owners. So the real owners have an objective which is maximization of their wealth. ठीक है? कि उनकी wealth ज़्यादा बढ़े, उन्होंने 5 रुपए अगर invest किए तो वो 5 से 6 हो जाए. So they work for their objective, who are the real owners. In order to make them work, we have this watchdog over here who's actually watching it, watching top management, and also to motivate them, giving them incentives. Now, how do you actually be working? You need to protect the interest of stakeholders. अब ये stakeholders बहुत सारे हैं. ये stockholders खाली नहीं है. ये खाली stockholders नहीं है, ये stakeholders हैं और ये बहुत सारे हैं. अब ये कौन से? Now, when we talk about an organization, we actually have employees. So we need to take care of the employees. ठीक है? उनके interest को safeguard करें. We also have our customers. One, actually very important. क्योंकि अगर इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये खरीदेंगे नहीं, ये खरीदेंगे नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेगी. ठीक है? ये काम नहीं करेंगे तो चीज बनेगी नहीं, ना प्रोडक्ट होगा ना सर्विस होगा. व्हाट वुड यू सेल टू योर कस्टमर्स? एट द सेम टाइम यू हैव योर creditors. Remember, the creditors are actually financing you. वो आपको फाइनेंस कर रहे हैं. So you need to safeguard the interest of your creditors. And then we have our suppliers, because they are actually supplying you the raw material, each and everything. अब ये सप्लाई करेंगे तो ये काम करेंगे और इनको प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है? इनके पैसों से. ठीक? So you need to safeguard the interest of all these, not to forget once again the community in which we operate. इसको नहीं भूलना. ठीक है? हम पाकिस्तानी यही भूल जाते हैं. आपको मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम हैदराबाद की, इंडस्ट्रियल एरिया की. So you need to take care of the community and their interest. उसके लिए आप डिस्पेंसरी उनके लिए खोल दें, उनके लिए रोड्स बना दें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन पाकिस्तान. ठीक? So there are lots of initiatives which you can start. A school maybe. ठीक? So there are lots of things which you can do over here. Is this clear? Yes, sir. Okay. This is something which works in US, so actually we are not talking about it. इसको छोड़ दें. अगर आप एक नजर देखना चाहते हैं आपकी मर्जी है, अदरवाइज टाइम बच जाए. कीजिएगा इस पे. एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. ओके. सो नाउ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट की छोटा सा आपको एक हिंट दे दूंगा यहाँ पर. बाद में मुझे नहीं पता इन BBA you do risk finance, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो है आपकी, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट शायद कहीं पे भी नहीं. फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट नहीं है. ठीक है? तो आपको एक आइडिया से थोड़ा सा दे दूंगा. ओके. नाउ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. नाउ दिस इज अबाउट एन एंटरप्राइज, एंड रिस्क मैनेजमेंट इन सिंपल वर्ड्स वुड बी हाउ यू हैंडल योर रिस्क. ठीक है? आप उस रिस्क को कैसे मैनेज करें. सो इट्स अ प्रोसेस व्हिच अ कंपनी इज यूजिंग टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिस्क. सबसे पहले रिस्क के लिए जरूरी है कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए. अगर आपको पता ही नहीं कि रिस्क क्या है तो फिर आप कैसे उसको मैनेज करेंगे. सो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिस्क. हां, दिस इज द प्रॉब्लम आई माइट कम अक्रॉस दिस प्रॉब्लम. एंड देन यू नीड टू टेक स्टेप्स टू मेक श्योर इट डज नॉट हैपन, कि वो ना हो या उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा ना हो कि वो मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को खराब कर सके. सो बेसिकली दिस इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है? अच्छा, अब रिस्क को करना क्या होता है? रिस्क के साथ 2-3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. Either you avoid the risk. आप ऐसा वही नहीं करेंगे जहां पे कि रिस्क होगा. You will not do that. If you do not do such things,
you will actually be letting go of lots of investment opportunities in which you might get some benefit, जिसमें से कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा. So what you can do actually, you can share this with another party. आप लोग ऐसा कोई काम करें जिससे आपका रिस्क जो है आपके साथ साथ आपको उस रिस्क को ले रहे हैं लेकिन आप उसको किसी और बंदे के साथ शेयर कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ आप नॉर्मली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप ये करते हैं. और यू कैन एक्सेप्ट द रिस्क. ठीक है यार, ये रिस्क तो होगा, ये काम करेंगे तो ये तो होगा, तो इतना गुंजाइश रखें अपने पास कि इसको फेस करें. बस ये आएगा, इसको आपने टॉलरेट करना है, इसको आपने करना है. ओके. और रिड्यूस द रिस्क. डू समथिंग सो दैट द रिस्क इज रिड्यूस्ड. वो कम हो जाए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू विद योर रिस्क. Okay. Once you know the risk, now you need to start off with the risk management tactics. And how you can do it? You can reduce the risk by doing something which we call as control procedures. हम उसको बोलते हैं कि वो control procedures हैं. हम वो procedures employ कर देते हैं. तो फिर उससे हमारा risk जो है वो कम हो जाए. ठीक है? For example, this is what you can do. Now let's say you have a product and there is a risk it might harm customers. अब जो हम लोगों ने जो ऑल पर्पस क्लीनर बनाया है, क्या पता वो किसी को हार्म कर दे किसी वजह से. तो फिर क्या करें? तो अच्छा ये है कि इसको लॉन्च करने से पहले इसकी टेस्टिंग. ओके. डेवलप अ फॉर्मल एंड रिगरस न्यू प्रोडक्ट टेस्टिंग. प्रोडक्ट टेस्टिंग करने का ताकि पता चले कि इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट है कि नहीं. ओके. लेट्स से रिस्क है कि मेरा कंपैटिटर है. वो कौन था जो कह रहा था कंपैटिटर को देखें? व्हाट्स योर नेम? एसएन के साथ सुल्तान. आपने कहा था ना कंपैटिटर्स को हम लोग देखें, कल आपने कहा था. ठीक है. तो अगर ऐसा कोई रिस्क है कि मेरा कंपैटिटर देख ले और मेरा मार्केट शेयर वो ले, ठीक है, हो सकता है वो मेरा मार्केट शेयर है, लूजिंग मार्केट शेयर ड्यू टू अनफोर्सीन एक्शंस ऑफ कंपैटिटर्स. मुझे नहीं पता कि वो क्या स्ट्रेटजी करेगा और वो ऐसा मार्केट शेयर ले ले. तो मैं क्या करता हूं कि मैं उसके लिए उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करता हूं, बट लीगली. याद है ना एथिक्स? याद है ना कल? Yes, sir. एथिक्स, एथिकल बिहेवियर, उसके अंदर रहते हुए. ऐसे ना हो आप चाहे जाकर उसमें से किसी बंदे को ब्राइब कर दें और उससे सारी इंफॉर्मेशन उठा लें और फिर उसको यूज करें और फिर आप कहेंगे यस नोबडी कैन टेक माय मार्केट. नहीं. ठीक है. लीगली गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कंपैटिटर्स प्लान्स एंड प्रैक्टिसेस. ओके. क्या पता मेरा जो प्रोडक्ट है वो अगर वेदर कंडीशंस चेंज हो तो उससे खराब हो जाए. ठीक. तो अगर इट्स अ वेदर रिलेटेड प्रोडक्ट जो उससे खराब हो और मुझे उसकी वजह से प्रोडक्शन बंद करनी पड़ जाए, सैलाब आ जाए, चले, ठीक, जलजला आ जाए, so what do? You develop contingency plans for such disruptions. हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को 2-3 जगहों पर, क्या पता एक जगह पे कोई ऐसा मसला आ जाए तो दूसरी जगह सेफ हो, क्या पता सैलाब आए तो इस तरफ आ जाए, ये जगह सेफ हो. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू थिंक. ओके. वेबसाइट माल फंक्शन. आपने वेबसाइट, यू हैव एन ऑनलाइन बिजनेस और वेबसाइट ही खराब हो गई, यू आर गॉन, कुछ भी नहीं. तो फिर क्या करना है? थॉरली टेस्ट वेबसाइट बिफोर गोइंग लाइव. उसको पहले से टेस्ट करें, देखें कि अगर उसके ऊपर कोई अटैक्स हो तो वो सेफ है कि नहीं. सप्लायर स्ट्राइक. अगर सप्लायर आपका कोई मसला आ रहा है, रॉ मटेरियल नहीं आ सकता, दिस व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द टाइम. रोड ब्लॉक है सर, क्यों? वो आज वो लोग बाहर निकले हुए हैं, वो ये एहतजाज कर रहे हैं. तो बस अब आप बैठ जाएंगे because you don't have raw materials, you cannot produce, you cannot manufacture. So then you need to look for multiple suppliers, 2 companies who are actually providing you raw materials. तो फिर एक के साथ वो ना रिलेशन रखें ना, 2-3 के साथ रखें. अगर इससे मैं मंगवाता हूँ और ये लोकेटेड है जीटी रोड पे, जीटी रोड ब्लॉक है आज, तो एक रिंग रोड के ऊपर एक सप्लायर ढूंढे जो रिंग रोड से आपको सप्लाई करे. ठीक. ओके. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनफेयरली रिपोर्टिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इन्वेंट्री की वैल्यू दिखा रहा है वो अनफेयरली रिपोर्टिंग, तो फिर आप क्या करें? सबसे आसान तरीका, इन्वेंट्री का सबसे आसान तरीका है जाएं, कम फिजिकल कम, वी कॉल इट एज फिजिकल कम. सो यू गो, यू काउंट द फिजिकल इन्वेंट्री ऑन हैंड टू मेक श्योर दैट इट एग्रीज विद द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, दोनों बराबर हो जाए. फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसको किस तरह बराबर करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग. वो सर both are should be equal.
अंडरस्टेटमेंट अंडरस्टेटमेंट ओवरस्टेटमेंट में क्या करते हैं? अगर ओवरस्टेट किया हो तो फिर उसको माइनस करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं एज इन्वेंटरी लॉस, ठीक है, ड्यू टू श्रिंकेज या शायद किसी और वजह से ड्यू टू श्रिंकेज, ठीक है, श्रिंकेज लॉसेस याद आ रहा है? ओके, ये हो गया एन एम्प्लॉय एक्सेसिंग अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन। अब आपके साथ अगर ऐसा हो जाए कि एक बंदा आपका बाहर इंफॉर्मेशन लीक आउट कर रहा है, तो फिर उसके लिए खतरा है आप, तो उसके लिए क्या करें? पासवर्ड बैरियर, ठीक है, फेस रिकग्निशन लगा दें, ठीक, रेटिना रिकग्निशन लगा दें, कुछ लगा दें, सेफ्टी मेजर्स रखें ताकि वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। टू स्टेप वेरिफिकेशन जिस तरह आप लोग देखते हैं, ठीक है, वो इसीलिए होती है कि अगर एक चीज लीक हो जाए तो दूसरी चीज ना हो सके। ठीक, क्लियर? क्लियर? ओके, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट। और फिर जब आप वो एग्जाम्स पास कर दें मैनेजमेंट अकाउंट, सो यू आर कॉल्ड एज अ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट। ठीक है, जो आपकी बॉडी है प्रोफेशनल, हमने क्या कौन कौन सी बॉडीज के नाम कल पढ़े थे? IMA in US, CIMA in UK, and ICMA in Pakistan. So they will give you the certification you are a professional management accountant, certified management accountant. See, if you pass all of their exams, और जो उनका रिक्वायरमेंट है कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का जो भी, सही है? Done? Done? Class done. Okay, so that's the end of chapter 1. We'll start off with chapter number 2. No, download कर दिया है. And this is from where the real work starts. अब तक तो we were talking about basics. We were talking about theories. ठीक है? कि मैनेजमेंट की theory क्या है, जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, blah blah. Now we are talking about costs. Cost, terms, concepts, and classification. ठीक है? अब आपका असल काम शुरू। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करेंगे? ब्रेक सर। ब्रेक? हमने अब तक इतना कुछ पढ़ा तो नहीं। ऑलराइट, ओके, देन 2 minutes break only, और फिर अगला स्ट्रेच लंबा होगा because the next stretch would go up to 30 plus 10 40 minutes. ओके।